Hello everyone, all those who are preparing for UGC NET JRF and SET examination for 2024. This is now lecture 2 of my free paper 1 course. So if you haven't yet watched lecture 1, then you must start in a sequence because I have started UGC NET paper 1 syllabus in a sequence starting from unit 1 teaching aptitude and with lecture 1 covering objectives, characteristics and basic requirements of teaching. Now this is lecture 2. Lecture 2 is with respect to levels of teaching from unit 1 of UGC NET paper 1 syllabus. So what you can do is you can watch my lecture 1 from the link that is provided in the description box of this video and start your preparation in a sequence in my free paper 1 course, right? And in this video lecture we will cover the topic that is levels of teaching from unit 1 of UGC NET paper 1 syllabus. Further, I will also inform you about my free paper 1 course in this video, which I am providing along with my book, plus from where you can get free structured PDF notes of paper 1. So do watch this video till the end. Let's start. First of all, I will introduce you to my free paper 1 course which I am providing along with my book. I am the author of this book and I have been teaching for UGC NET examination since 2014 and producing very good results with God's grace. So I'll talk about this free paper 1 course, what you will get in this or what I'm going to cover in this. Okay, we will cover full syllabus of paper 1 and that too chapter wise. I'll be providing you content based chapter wise PDF notes for entire syllabus of paper 1 along with this book so that your preparation is complete by just buying this book. Those chapter wise free PDF notes are fully structured, ठीक है, उनमें कोई भी कमी नहीं होगी. सारे जो topics हैं they are as per UGC NET final examination pattern. Then further I will also provide you chapter wise or you can say topic wise practice questions. ठीक है, हर चैप्टर के साथ आई एम प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो व्हिच यू विल अटेम्प्ट एज टेस्ट. ठीक है, उनको आप चेक कर सकते हो एंड देन उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आल्सो आई एम प्रोवाइडिंग सो दैट कोई भी कमी ना रह जाए आपकी प्रिपरेशन में. Giving you an example, for example, chapter 1 is there, that is introduction to teaching, objectives, characteristics and basic requirements. You will study those notes. आपने उन notes को thoroughly prepare करना है. You have to watch my lecture 1 video from YouTube एंड उसके बाद आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का टेस्ट देना है. ठीक है, उसका जो स्कोर है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर के ऊपर 9750000491. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विथ मी. अदरवाइज मैंने सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी आपको प्रोवाइड किए हैं इन दोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है, एंड देन I will also cover latest previous year questions along with the strategies with respect to 2023 and 2024 examination. I have already made a playlist named as August-September 2024 paper 1 PYQs and I have started with teaching aptitude. ठीक है, तो मेरी उस playlist को आप जाकर आपने side by side previous year questions की explanations को भी prepare करना है along with this book. ठीक है, so there are two things. First, जो भी स्टूडेंट इस बुक को बाय करता है उसको फ्री जो है पेपर 1 के सारे चैप्टर वाइज फ्री PDF नोट्स मिलेंगे ऑनलाइन, राइट, एंड प्लस YouTube वीडियोस के थ्रू यू विल बी एबल टू प्रिपेयर जो लेटेस्ट हमारे अगस्त सितंबर 2024 वाले PYQs हैं उनके भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशन PDF नोट्स मिलेंगे along with this book, right? Further, इस बुक में से हमने कैसे प्रिपेयर करना है आई विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग. कैसे हम बहुत सारे PYQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग दिस बुक फ्रॉम 2014 से लेकर 2024 तक. देन there are online tests also of paper 1 attached with this book. So there are a lot of benefits attached to book. If you have not bought this book, go on the Amazon link that I have provided in the description box of this video and order this book today and WhatsApp me on my number that is 9750000491. Now starting with Unit 1 Teaching Aptitude, Chapter 1 Introduction to Teaching. We have already covered these topics, that is objectives of teaching, characteristics of teaching, basic requirements of teaching in Lecture 1, right? You can watch my Lecture 1 video from the
link that I have provided in the description box of this video. Fine. And I have also provided you free PDF notes along with my book with respect to these topics. The next, in this video we will cover up the topic that is levels of teaching, that is lecture 2, and I will also provide you free PDF notes of this topic, levels of teaching specifically, right? And that will be called as chapter 1.2. In that I will also give you homework which I will inform you after discussing the entire topic at the end of this video lecture. So watch this video till the end and prepare this topic during this video only. All the best. Levels of teaching. First of all, you should know that who has given this viewpoint that teaching learning जो situation है, it is classified on a continuum. Continuum, you understand, एक scale है, एक range है, which ranges from thoughtful to thoughtless operations. ठीक है, जो teaching learning की situation है ना, उसको classify किया है एक scale के ऊपर कि ये range करता है from, you can see over here in this diagram, from least thoughtful, then most thoughtful. ठीक है, एक इसका hierarchical order है. So ये जो viewpoint है, this viewpoint is given by whom? Name of the person is Morris. You need to remember this. This was December 2020 question from UGC NET examination. Then herein अभी हम सिर्फ 3 levels को just overview करेंगे. Then I will discuss them in detail afterwards. Okay. So the levels of teaching, they comprise of 3. You should know that ये जो different levels of teaching हैं, they are classified on a continuum, on a scale, that means each requiring progressively more cognitive engagement. जैसे जैसे ये level increase होता जाता है, जो cognitive engagement है, cognitive का क्या मतलब है, जो हमारे brain की, जो हमारे माइंड की इंटेलेक्चुअली जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इंगेजमेंट है, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ेगी, वो इंक्रीज होगी एज द लेवल ऑफ टीचिंग विल इंक्रीज. ठीक है, जो कॉग्निटिव इंगेजमेंट है दैट विल इंक्रीज. ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूम, दिस इज अ स्केल. सो एट द फर्स्ट लेवल वी हैव मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल अब क्या है? मेमोरी लेवल जो है ये लीस्ट थॉटफुल है, या हम इसे कहते हैं थॉटलेस टीचिंग. लीस्ट थॉटफुल, ज़्यादा हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. थॉटलेस टीचिंग, हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड या हमें कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं देने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को. ठीक है, अगर लर्निंग के एंगल से देखें, लर्निंग जो है इट इज़ प्राइमरली रेपिटेटिव. रेपिटेशन कर करके स्टूडेंट ने उस चीज़ को, किसी भी टॉपिक को लर्न करना है. एंड इट इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल थॉट बियॉन्ड मेमोराइजेशन. सिर्फ मेमोराइज करना है. ठीक है, एट दिस लेवल, मेमोरी लेवल, तभी इसका नाम है मेमोरी लेवल. देन सेकेंड जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल. यहाँ पे लर्निंग जो है इट बिकम्स मोर थॉटफुल, और वी कैन से थॉटफुल टीचिंग इज देयर एज जो स्टूडेंट्स हैं दे गेट इंगेज्ड with the material to understand it conceptually. इस लेवल पे स्टूडेंट्स ने मटेरियल को, जो भी कंटेंट या मटेरियल टीचर उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है. दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन एज अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है दैट हैज इंक्रीज्ड, कॉग्निटिव एंगेजमेंट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज थॉटफुल टीचिंग. जो थर्ड लेवल है दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट थॉटफुल लेवल. ठीक है, यू कैन सी on this hierarchical order it is here on the top, reflective level, most thoughtful level. यहाँ पे जो learning है it is deeply thoughtful, it requires critical thinking, problem solving skills, they are required, right? So यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ discuss किया है कि जो situation है, viewpoint है teaching learning situation, it has been classified on a continuum as thoughtful to thoughtless operations. Who has given it? Morris has given it. These are UGC NET questions. ठीक है, 3 levels हैं. You should know the names of 3 levels. Now further we will discuss them in detail one after the other. So herein I will discuss the difference between these 3 levels of teaching. Otherwise जो सारी detail है इन तीनों लेवल्स के ऊपर आई हैव प्रोवाइडेड यू फ्री पीडीएफ नोट्स. ठीक है, चैप्टर 1.2 है लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. सो हेयरइन आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 लेवल्स. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड. अब मेमोरी लेवल फ्रॉम यूजीसी नेट एंगल, यू नीड टू नो नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ गिवन दिस. ठीक है, ये किसका मॉडल है?
HERBARTIAN, you should know the name Herbarian. Model है understanding model जो है level, understanding level, it is given by Morrison. So Morrison teaching model. Reflective level you should know Bidge and Hunt teaching model. ये अच्छे से याद होना चाहिए. तो यहाँ पे अब हम स्टडी करने लगे हैं कि इनका जो बेसिक फोकस है वो क्या है. मेमोरी लेवल का जो मेन फोकस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो सिर्फ मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर है. मेमोराइजेशन मीन्स याद करना, रट्टे लगाना. वी ऑल्सो यूज द कीवर्ड्स रॉट लर्निंग. रॉट लर्निंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए. मेमोराइजेशन एंड रॉट लर्निंग मेमोरी लेवल का फोकस है. रट्टे लगाना, याद करना रेपिटेडली. ठीक है. द गोल ऑफ दिस लेवल इज टू हेल्प स्टूडेंट्स रिटेन इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन को याद रखें एंड दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट व्हेन नीडेड. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर टीचर उन्हें टेबल्स याद करवा रहा है, तो टेबल्स जब टीचर याद करवाता है तो व्हाट इज गोइंग ऑन, रट्टे लगवा रहे हैं हम टेबल्स की. ठीक है. 2 into 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4, 2 into 3 is equal to 6. ठीक है. तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है दे आर एबल टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूस इट व्हेन नीडेड. सो दिस इज मेमोरी लेवल. सो रिमेंबर दिस. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग वर्ड इन इटसेल्फ सेज अंडरस्टैंड करवाना. तो यहाँ पे क्या लिखा है, फोकस क्या है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. दिस मॉडल एम्फसाइजेस कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग हो जाए स्टूडेंट्स को किसी भी कॉन्सेप्ट की. They should have a meaningful learning from that concept. ठीक है. The goal is to help students understand the concepts and principles beyond just memorizing them. सिर्फ रट्टे नहीं लगाने, उससे ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स जो है अंडरस्टैंड कर पाएँ, कुछ मीनिंगफुल लर्निंग वहाँ से ले पाएँ. दिस इज द फोकस ऑफ दिस लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल. क्लियर. नेक्स्ट जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, रिफ्लेक्टिव मीन्स रिफ्लेक्ट करना, खुद के बारे में देखना, सोचना कि आपको क्या ये चीज़ समझ आई है कि नहीं आई है as a student. So this model, it focuses emphasis on critical thinking and problem solving skills. ये develop होने चाहिए students के. The goal is to help students apply their knowledge to real world situations. जो भी पढ़ाया जा रहा है उन्हें classroom में, क्या students जो हैं उस knowledge को, उस information को apply कर पा रहे हैं to real world situations. ठीक है. This is reflective level. And they are able to develop their higher order thinking skills. Are they able to solve a problem? उनके critical thinking skills develop होंगे, problem solving skills जो हैं वो सारे develop होने चाहिए. When we are talking all this, this is with respect to reflective level of teaching, right? I will discuss all these three levels through an example now, so you will understand it more nicely. ठीक है. But ये जो keywords हैं from UGC Net angle, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. आई थिंक यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 लेवल्स. ठीक है. आई रिपीट, मेमोरी लेवल, मेमोराइजेशन, रट्टे लगाने हैं, याद रखना है, रॉट लर्निंग, दीज आर द कीवर्ड्स. अंडरस्टैंडिंग लेवल में कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, मीनिंगफुल लर्निंग हो. रिफ्लेक्टिव लेवल में द गोल, द फोकस इज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, right? Herein the students should apply the knowledge to real world situations and develop their higher order thinking skills. So to make you understand, I have taken example with respect to traffic rules. ठीक है. सभी को पता है what are traffic rules, traffic lights, right? Everybody knows. तो अब हमने इन तीनों levels को समझना है बहुत अच्छे से. ठीक है. Memory level की अगर हम बात करें, keywords क्या है, emphasizes on rote learning, रट्टे लगाना. ठीक है. तो अब यहाँ पे memory level के according फ्रॉम टीचर परस्पेक्टिव फोकस क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं उनको याद कर लें. जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं सच एज रेड लाइट मीन्स स्टॉप, राइट, ग्रीन लाइट मीन्स गो एंड ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट. ठीक है. ये बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं. अब टीचर जो है मेमोरी लेवल पे ये चाहता है, ये एक्सपेक्टेशन है दैट स्टूडेंट्स शुड लर्न दीज रूल्स. ठीक है. एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिसाइट दीज रूल्स व्हेन प्रॉम्प्टेड. जब भी स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि व्हाट आर द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, वो क्विकली जो है आंसर कर सकते हैं, वो रिसाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन की जो है रॉट लर्निंग हो चुकी है. टिल हियर इट इज क्लियर. ट्रैफिक रूल्स. देन अब हम इसी एग्जांपल को अगर हम फर्दर लेकर जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर. अब यहाँ पे टीचर को ये समझाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को दैट व्हाई द रूल्स आर इम्पॉर्टेंट. जो हम ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहे थे, व्हाई दोज रूल्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करवाना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पे इस लेवल के अकॉर्डिंग टीचर जो एक्सप्लेन करेगा कि वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं.
हमारी सेफ्टी के लिए, एंड कैसे जो है इट विल हेल्प अस टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स, ठीक है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट की कि व्हाई दोस ट्रैफिक रूल्स आर नेसेसरी फॉर देयर सेफ्टी, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हैं अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में कि क्यों इंपॉर्टेंट है रेड लाइट के ऊपर स्टॉप करना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू वेयर सीट बेल्ट्स, ठीक है, ड्यूरिंग अ क्रैश, इट विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लग गई यहाँ तक। मेमोरी लेवल में मैंने सिर्फ ये कहा कि स्टूडेंट्स को जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, वो याद होने चाहिए। जब भी हम उनसे कुछ पूछेंगे दे आर एबल टू टेल दैट रेड लाइट मीन्स स्टॉप, ग्रीन लाइट मीन्स गो, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये है कि वो रूल्स क्यों पता होने चाहिए, वाई दोज रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट विल हेल्प देम टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव लेवल की क्या बात है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो भी स्टूडेंट्स ने नॉलेज गेन की है दे शुड बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं एज अ टीचर कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन if the traffic rules are not being followed, what will happen, तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स की एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेज, दे आर एबल टू थिंक क्रिटिकली, ठीक है। वो बता सकते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर एनालाइजिंग कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, दे आर एबल टू टेल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, दे नो that it will lead to accidents or injuries, and even वो suggestions भी दे सकते हैं, they can suggest some solutions also for improving road safety, ठीक है। दे नो कि कैसे जो है रूल्स स्ट्रिक्टली ओबे करने चाहिए या कोई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हमें कंडक्ट करने चाहिए टू सॉल्व द सिचुएशन, ठीक है। अब आप समझ रहे हो रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर स्टूडेंट के जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो कितने डेवलप हो चुके हैं। I hope through this example you will remember what these three levels are, क्योंकि आपको इनका difference समझना बहुत ज़रूरी है। So remember this example. There are various examples to it. अगर आपको कोई problem है, you can always WhatsApp me on my number and I will explain you further this topic, that is levels of teaching. Okay. So with respect to differentiation of these three levels, focus हमने already discuss कर लिया and I have discussed the example, right? Next जो aspect है that is cognitive level, ठीक है। अब इतनी discussion के बाद हमें ये पता चल गया है कि with respect to memory level, lower order thinking skills they get developed, remembering, ठीक है, याद रखना। Then with respect to understanding level, ये सारे keywords आपने अच्छे से याद करने because these will help you to attempt UGC NET questions, ठीक है। Middle order thinking skills develop होते हैं, इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, अप्लाई करना उस कॉन्सेप्ट को, उस अंडरस्टैंडिंग को। विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हमारे डेवलप होते हैं स्टूडेंट्स के, वो एनालाइज कर पाते हैं सिचुएशन को, दे आर एबल टू इवेलुएट एंड गिव देयर ओन सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, राइट। देन टीचिंग मेथड, विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी लेवल जो मेथड है, जो टीचिंग मेथड है दैट विल बी टीचर सेंटर्ड, क्योंकि बेसिकली टीचर ने ही प्रेजेंट करनी है सारी इन्फॉर्मेशन एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज इट, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे में है टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड इज द की वर्ड, दीज आर यूजीसी नेट क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रही हूँ, क्लियर। देन विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो टीचिंग मेथड है यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड तो वो है ही है बट इट हैज़ टू बी मोर इंटरैक्टिव, क्योंकि यहाँ पे टीचर को स्टूडेंट के साथ काफ़ी इंटरैक्शन, बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। तभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को। सो हेयर द टीचर एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स इन अ वे दैट स्टूडेंट्स कैन ग्रास्प and encourages them to explore and assimilate that knowledge, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उस नॉलेज को गेन करें। दैट्स वाई इट्स रिटन इंटरैक्टिव स्ट्रक्चर्ड। अब यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है यू शुड नो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल में डेफिनेटली स्टूडेंट सेंटर्ड तो रहेगा बट इट इज़ इंक्वायरी बेस्ड। यहाँ पे जो टीचर है acts as a facilitator, as a guide, ठीक है, वो गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को so that they can think critically, they should ask questions and they're able to solve the problems. ये ऑब्जेक्टिव है ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, तभी यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लिखा है। दीज आर द कीवर्ड्स। जिस स्टूडेंट को ये सारे कीवर्ड्स पता होंगे वही स्टूडेंट जो है आइडेंटिफाई कर पाएगा यूजीसी नेट क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट। अदरवाइज इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है डिफ्रेंसिएशन का, दैट इज स्टूडेंट रोल।
अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो टीचर का फोकस है वो ज़्यादा है, तो पैसिव रेसिपेंट्स, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं दे आर पैसिव रेसिपेंट्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं बट दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस, ठीक है। स्टूडेंट्स फोकस ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड रिपीटिंग देम ड्यूरिंग असेसमेंट्स, उन्हें जो भी याद करवा दिया उन्होंने जस्ट जब उन्हें पूछा जाएगा दे विल आंसर दैट आउट, ठीक है, दे आर पैसिव रेसिपेंट्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो स्टूडेंट रोल है दैट इज एक्टिव, दे हैव टू बी एक्टिव, ठीक है, तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे द मटीरियल, द कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग provided to them by the teacher, active participants. With respect to reflective level, the student has to be independent thinkers, they are independent thinkers, ठीक है, because definitely students जो हैं they have developed those higher order thinking skills, they can analyze the situation, they can apply their knowledge to complex real life situations, real life problems, ठीक है, तभी उन्हें कहा है independent thinkers, clear? So application, these are easy points now. Basic foundational knowledge यहाँ पे apply की जाती है, conceptual understanding, अब यहाँ पे real world application and reflection. Few examples are given over here. Memorizing dates, अगर हमने कोई हिस्टोरिकल डेट्स लर्न करनी है या फिर फैक्ट्स फिगर्स अगर हम याद कर रहे हैं, टेबल्स याद कर रहे हैं, सो दिस आर ऑल एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, हम उनको समझ रहे हैं, व्हाई दोज प्रिंसिपल्स आर लाइक दैट, ठीक है। Then it is related to understanding level, solving complex real world problems, अगर हम कोई case study दे रहे हैं student को, that is with respect to reflective level of teaching. I hope these differences are clear to you. Now this is UGC NET examination question, ठीक है, ये एक MCQ question है, that is a simple level question with respect to topic that is levels of teaching. The objective of reflective level teaching is, यहाँ पे ऑप्शंस दी हैं, टू इम्पार्ट नॉलेज टू द लर्नर्स, ठीक है, नाउ यू आर फुली प्रिपेयर्ड टू इम्पार्ट नॉलेज टू द लर्नर्स, दिस इज रिलेटेड टू मेमोरी लेवल, ठीक है, क्योंकि मेमोरी लेवल में टीचर का जो फोकस है वो ये रहता है प्रोवाइडिंग बेसिक नॉलेज सो दैट स्टूडेंट्स कैन रिमेंबर दैट एंड रिकॉल व्हेन नीडेड, ठीक है। It involves lecturing, reading, or having students memorize specific information, right? So to impart knowledge to the learners is for sure related to memory level of teaching. You should know this, ठीक है। अब जो second point है, that is to develop insight into the learners to solve problems. This is the answer to this question because we've already discussed this कि reflective level teaching में कैसे अपने insights को develop करना है so that students जो है they are able to solve their problems, they are able to develop higher order thinking skills, ठीक है, that is the point. जो third point है, to make students relate facts with the principles. Remember this, it is related to understanding level, क्योंकि इस level में students को encourage किया जाता है that they should develop a relationship between specific facts and जो principles हैं, they learn how to connect the details, the facts, they learn how to connect जो facts होते हैं and understanding the principles, ठीक है, इससे क्या है उनकी जो understanding level है, जो conceptual understanding है वो increase होती है, right? So last जो point है that is not at all related to any of the objectives, to discourage students to apply knowledge in similar and different situation, ठीक है। So if you are well prepared, you are able to attempt UGC NET questions for sure. Now I have discussed a low level question with respect to the topic that is levels of teaching, ठीक है, but अगर आपने UGC NET एग्जाम को क्लियर करना है you have to prepare higher level of questions, ठीक है। So ये जो क्वेश्चन है it is from 3rd March 2023 UGC NET examination, तो ये एक हायर लेवल का क्वेश्चन है, if you are not fully prepared you won't be able to attempt it, ठीक है। So आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन डेफिनेटली चाहिए with respect to entire syllabus of paper 1, then you can easily score 40 questions plus correct, ठीक है। So herein the question is arrange the 5 steps of understanding level of teaching according to Morrison in the ascending sequence. Increasing order में आपने इन 5 steps को arrange करना है and these 5 steps relate to understanding level of teaching, right? All this content I am providing you along with my book, ठीक है। So कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको सारे full fledged notes देने हैं levels of teaching topic के ऊपर, don't worry at all. Let's discuss this question, ठीक है। यहाँ पे मॉरिसन के जो 5 steps हैं they are focusing on systematic progression of teaching, ठीक है। तो जो first step है understanding level के नीचे which Morrison has given is exploration, ठीक है। in this stage, in this steps कह सकते हैं हम, stage कह सकते हैं, जो students हैं वो explore करते हैं new concept को। हम understanding level of teaching की बात कर रहे हैं, तो जो first step है that will be exploration, E stands over here, तो answer
स्ट्रेट अवे फर्स्ट ही था इसका। जो इसकी डिस्कशन है वी विल डू दैट। तो एक्सप्लोरेशन स्टेज में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट को और मटेरियल को, क्योंकि टीचर ने उनको इंट्रोड्यूस करा है कोई नया टॉपिक। So students जो हैं they get themselves engaged with the information, they want to know about the topic, they want to learn about the topic, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में प्रेजेंटेशन, जो टीचर है वो प्रेजेंट करता है उन्हें कंटेंट इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, बिकॉज इट टीचर हैज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एक प्रेजेंटेशन जो है दैट हैज टू बी देयर, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है दैट इज एसिमुलेशन। हेयर इन जो स्टूडेंट्स हैं दे बिगिन टू एसिमुलेट द नॉलेज प्रेजेंटेड, ठीक है। दे स्टार्ट कनेक्टिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन विद देयर प्रायर नॉलेज। जो उन्हें टीचर अभी समझा रहा है उसको कनेक्ट करने लग जाते हैं, पहले उन्होंने क्या समझा था, दे स्टार्ट रिलेटिंग टू दैट, ठीक है। तो एसिमुलेट करना थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, एसिमुलेट करना। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स जो हैं दे स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन दे हैव लर्नड, ठीक है। दे स्टार्ट अरेंजिंग द आइडियाज लॉजिकली, ठीक है, क्रिएटिंग अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। और जो फाइनल स्टेप है दैट इज रिसाइटिंग, रेसिटेशन और डिमॉन्स्ट्रेटिंग। Students are expected to recall and express what they have understood, either through verbal recitation or written work. ठीक है, so these are the 5 steps under understanding level of teaching. You must learn them very nicely, क्योंकि ये वो difficult level of questions हैं which each and every student, if you are not prepared, you are not able to do those, ठीक है। इनके लिए आपको प्रिपरेशन डेफिनेटली चाहिए। यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक वोंट वर्क, इट वोंट हेल्प, ठीक है। Now all those who have got this book, ठीक है, जिन्होंने मेरा lecture 1 सीरीज स्टार्ट किया है मेरे साथ, फ्री पेपर 1 कोर्स, सो द होमवर्क फॉर यू इज नाउ आई विल प्रोवाइड यू लेवल्स ऑफ टीचिंग पीडीएफ, ठीक है, जो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए हैं फ्री में इस बुक के साथ। आपने उस पीडीएफ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उस पीडीएफ में ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ टीचिंग, वट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, ठीक है, प्लस लेवल्स ऑफ टीचिंग डिटेल में, ठीक है। इस पीडीएफ में से कोई भी क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू दिस टॉपिक बाहर से नहीं आएगा। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पीडीएफ। जो भी लास्ट 5 years का हमारा ट्रेंड था विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, एवरी कंटेंट जो है, नोट्स जो है वो मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए हैं, ठीक है। आपने इस पीडीएफ को सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग लेवल के यहाँ पे स्टेप्स डिस्कस किए हैं, सिमिलरली मेमोरी लेवल के भी स्टेप्स हैं। यू हैव टू प्रिपेयर दोज ऑल्सो वेरी नाइसली, ठीक है। तीनों लेवल्स को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना। आई हैव गिवन एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन द पीडीएफ, ठीक है। आफ्टर दैट सारा कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद यू हैव टू डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक टेस्ट बनाया है, उसको आपने अटेम्प्ट करना है, एंड दैट टू आई हैव गिवन विद एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक टेस्ट है, जो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इससे क्या है, आपकी टॉपिक वाइज जो है ना वो टेस्टिंग हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनका भी एक टेस्ट है, उसको भी विद एक्सप्लेनेशंस आपको मैंने प्रोवाइड किया है। ऑल दिस एंड फ्रॉम दिस बुक what you will do, from page number 171 to page number 176, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू टॉपिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपने बुक में से डन करने हैं। इनके आंसर्स को चेक करो एंड पीछे एक्सप्लेनेशंस दी हैं, एक्सप्लेनेशंस को भी फुली प्रिपेयर करो, क्योंकि इन एक्सप्लेनेशंस में वो सारे कीवर्ड्स हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑफ great help to you if you are preparing all the explanations from this book. It will help you a lot. इससे क्या होगा, आपका ये specific जो topic है fully prepare हो जाएगा, ठीक है। Go and revise, watch this video again, prepare levels of teaching pdf, attempt practice questions, attempt pyqs test, prepare it from the book, and your this topic is surely done. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, okay? So if you are new to my channel, do subscribe my channel, and you must comment how did you liked my video. And if you have not bought my book, you must know about the features of this book. All the important and trending topics of 2023 and 2024 examination are covered in this book, ठीक है। चाहे आप न्यू एस्पायरेंट हैं, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, ये बुक आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 जो आपका कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा यूजिंग दिस बुक। Now
if you have not ordered this book, I will let you know कि इस book के features क्या हैं, so that you come to know कि इस book का benefit क्या आपको रहेगा, right? जैसे आपने मेरा video lecture देखा, you come to know that a free paper one course is running along with this book. जिन students के पास ये book है उनको सारे जो है free PDF notes भी मिलेंगे syllabus wise for paper one, ठीक है? And इस book के specific जो features वो क्या हैं? Let's discuss that. Complete coverage of paper one syllabus. आपका syllabus जो है paper one का वो complete cover हो रहा है through various MCQs given in this book. Unit wise and topic wise segregation की हुई है questions की from all the 10 units. Unit wise you understand teaching aptitude, research aptitude, logical reasoning like this. Topic wise का क्या मतलब है? Like objectives, characteristics and basic requirements, levels of teaching एक जगह पे, उनके related जो questions हैं you will get those at one place, ठीक है? In this book, previous year questions from June 2014 से लेकर December 2023 तक सारे जो questions हैं उनका research करके analyze करके वो वहाँ पे दिए हुए with explanations. Then there are practice questions also at the end of every chapter. हर unit के teaching aptitude, research aptitude के practice questions भी हैं with explanations. ज़्यादा जो emphasis है वो trending questions के ऊपर दिया गया है with respect to June 2023, December 2023 examination questions. And you will get lots and lots of more PYQs practice to cover your all 10 units along with this book. ठीक है, जो most important feature है इस book का, that is very useful to you even if you are new student or you are an old student. इस book के साथ आपको free PDF मिलेंगी. 18th June 2024 examination जो conduct हुआ था उसमें 2 shifts थे 1 and 2 with detailed explanations unit wise sort किए हुए हैं सारे questions, वो सारा कुछ आपको मिलेगा with this book detail में. Similarly August September में जितने shifts conduct हुए थे सारे shifts के previous year questions आपको मिलेंगे segregate किए हुए, sorted किए हुए unit wise. इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं अगस्त सितंबर के एक जगह कर सेट किए हुए हैं. यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर दैट. ऑल दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड अलोंग विद दिस बुक, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज देयर, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आर देयर. सो ये जो बुक है कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट प्रिपरेशन है फॉर पेपर वन एंड दैट टू फ्री. सिर्फ आपने इस बुक को बाय करना है, दैट्स इट. यू हैव टू वॉच माई यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स, यू हैव टू प्रिपेयर विद मी, दैट्स इट, ठीक है? So if you're interested to continue your preparation with me, do comment in the video below that yes, you want to prepare with me, or you can WhatsApp me on my number 97500000491. If you want to know which are the important topics, which are the trending topics, stay tuned to my channel. I will come up with a lot of videos on important topics, trending topics which are being asked in August, September UGC NET examination. So if you're interested, you can order this book from Amazon or Flipkart. I have provided you link of Amazon in the description box of this video. You can click on that link and place your order. So if you want to prepare with me, you can WhatsApp me on my number, that is 97500000491. I will add you to my group of UGC NET Paper 1 preparation. All the best, and thank you so much for watching this video.